بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات، جان کائنات، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو محبت بھرا سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، گجرات شہر آج چھٹا روز ہے سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ بلند بانگ دعوے، پورے پنجاب کی مشینری، 5 بڑے شہروں سے واسا کے حکام کا گجرات بھجوانا، 3 محکموں کے سیکرٹریز کا ہمہ وقت مصروف عمل ہونا، 48 گھنٹے کی مہلت کا ملنا وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے، اور اس کے نتیجے میں ابھی تلک 50% صرف پانی کا نکلنا ایک سوالیہ نشان۔ محترمہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہنگامی طور پر دورہ کیا گجرات شہر کا، کیونکہ گجرات کے باسیوں نے اس سے پہلے کبھی یہ مناظر نہیں دیکھے۔ لیکن ناظرین، اس سے بھی حیرت انگیز بڑا ایک منظر جو سیاسی حلقوں نے دیکھا، گجرات والوں نے دیکھا، وہ یہ تھا کہ نون لیگ کی وزیر اعلیٰ گجرات تشریف لائیں، لیکن نون لیگ کی ضلعی قیادت، بڑے بڑے نام، وہ محترمہ کے استقبال کے لیے موجود ہی نہیں۔ یہ کیا ہوا؟ کیا نون لیگی قیادت نے بائیکاٹ کیا اپنی قائد کے گجرات کے اس دورے کا، یا پھر کاف لیگی جو قیادت ہے گجرات کی اس کو کوئی پیغام دیا گیا، یا یہ ایک خاموش احتجاج تھا جو نون لیگ کی قیادت نے ریکارڈ کروایا؟ آخر ماجرا کیا ہے، اندر کی کہانی کیا ہے، یہ آج کی اس ویڈیو کا موضوع۔ جی ناظرین، ماجرا کچھ یوں ہے کہ چودھری شجاعت حسین کے بیٹے سالک و شافع وفاقی اور صوبائی وزیر ہیں اس وقت کاف لیگ کے، اور نون لیگ کی حکومت کے بڑے اتحادی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ چودھری شافع حسین کی دعوت پر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز نے سیلابی پانی میں ڈوبے ہوئے گجرات شہر کے باسیوں کی مصیبتوں کا اندازہ کرنے کے لیے ہنگامی دورے کا ایک منصوبہ بنا لیا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر یہ دیکھنے کو ملا کہ جب وہ گجرات پہنچیں تو نون لیگ کی جو قیادت کے بڑے نام ہیں، ڈویژنل صدر چودھری عابد رضا ہوں، گجرات ضلع کے صدر نوابزادہ طاہر الملک ہوں، اور دیگر جو ہیں حاجی ناصر محمود سابقہ میئر، اور دستے راست میاں نواز شریف کے، اور ملک حنیف اوان، میاں طارق محمود، بڑے بڑے نام، چودھری نصیر عباس سدھ، یہ سب کے سب غائب تھے۔ نہ کوئی مریم نواز کے استقبال کے لیے جو ہیلی پیڈ بنایا گیا تھا وہاں دیکھنے کو ملا، اور نہ ہی اس بریفنگ میں کوئی چہرہ نظر آیا جہاں ضلعی انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو گجرات کی صورتحال کے بارے میں بریف کیا۔ لیکن یہاں نون لیگ کی جانب سے صرف ایک لیڈر نظر آئے، نوابزادہ غضنفر علی گل، جو موجود تھے، جبکہ باقی پی ٹی آئی کے جو ایم این اے ایم پی ایس تھے ان میں سے بھی چودھری حسین الہی وہاں پر موجود نہیں تھے، اور چودھری محمد الیاس این اے 62 سے وہ موجود تھے، چودھری اعجاز غنیہ ایم پی اے جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے۔ اب ناظرین، یہاں سے بہت سوال اٹھے، بڑی چہ گوئیاں ہوئیں، سیاسی حلقوں میں بڑے تبصرے ہوئے، کچھ تبصرے تھڑوں پہ ہوئے، کچھ تبصرے سرگوشیوں میں ہوئے۔ میڈیا پر یہ تاثر دیا گیا کہ شاید نون لیگ کی قیادت نے کوئی بائیکاٹ کر دیا ہے وزیر اعلیٰ کے اس دورے کا۔ اب سوال اگلا یہ تھا کہ اگر یہ بائیکاٹ ہے تو شکایت کیا ہے؟ جی، آخر نون لیگ کی ضلعی قیادت کو اپنی مرکزی قیادت سے، صوبائی قیادت سے کس بات کی شکایت ہے؟ وہ کیوں نالاں ہیں؟ آخر ان کو ایسا ہوا کیا؟ ناظرین، اسی دوران میڈیا پہ شیئر ہوا نوابزادہ غضنفر علی گل کا ایک بیان جس نے چونکا کے رکھ دیا سب کو۔ جی، انہوں نے میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے یہ کہا، اب وہ پیغام نہ جانے کس کو یہ دے رہے تھے۔ ان کا یہ بیان تھا کہ میں الیکشن سے ریٹائر ضرور ہوا ہوں، سیاست سے ریٹائر نہیں ہوا۔ مجھے اسلام آباد میں یہ پیغام ملا کہ مریم نواز صاحبہ گجرات تشریف لا رہی ہیں، تو میں اسلام آباد سے خاص طور پر ان کے استقبال کے لیے پہنچا ہوں
क्योंकि वो मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं, उनका एहतराम हम पे वाजिब है। और इसके बाद उन्होंने मलिक हनीफ अवान का तज़किरा किया कि उनसे मेरी बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि मुझे भी वज़ीर आला हाउस से दावत मिली, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मेरी फैमिली में शादी है और मैंने इस बारे में वज़ीर आला हाउस को आगाह भी कर दिया है। और मलिक हनीफ अवान का ये कहना था कि अगर वो शादी पे ना होते तो वो ज़रूर वज़ीर आला के इस्तकबाल के लिए पहुँचते, और उन्होंने इस बाबत वज़ीर आला हाउस को इत्तला भी कर दी है। और मज़ीद नवाबज़ादा गज़नफ़र अली गुल ने नाज़रीन ये भी वाज़े किया कि उनका ये सारे बाइकाट के किसी मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रहा सवाल उनके साहबजादे साबिक MP नवाबज़ादा हैदर मेहदी की वहाँ पे अदम मौजूदगी का, तो इस बारे में नवाबज़ादा गज़नफ़र गुल का कहना था कि जब मैं मौजूद हूँ वहाँ पे तो फिर हैदर मेहदी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं। नाज़रीन, मेरा राब्ता हुआ मुस्लिम लीग नून ज़िला गुजरात के सदर नवाबज़ादा ताहिरुल मुल्क से। मैंने सवाल किया जी कि पहले तो ये बताइए कि क्या ये बाइकाट था। इस पर उनका कहना था कि मीडिया में जो ये लफ्ज़ बाइकाट है ये बिल्कुल इसके सियाको सबाक से हटकर इसको इस्तेमाल किया है, बाइकाट वाला कोई सिलसिला नहीं था। तो मेरा सवाल था फिर आप क्या इत्तफाकन वहाँ पर मौजूद नहीं थे या अपनी आपकी कोई मसरूफियात थी। इस बारे में उनका ये कहना था कि हमने असूली मौक़िफ़ अपनाया दोस्तों ने मशावरत के बाद कि चूँकि वज़ीर आला पंजाब जब आ रही हैं तो वज़ीर आला हाउस से चीदा चीदा लोगों को, टिकट होल्डर्स को, पार्लियामेंटेरियंस को इतला भी दी गई है, तो वहाँ काफ लीग के MNA MPs मौजूद होंगे और ये वो लोग हैं जो हमसे हर हलके में हारे हुए। तो फिर जब ये वहाँ मौजूद हैं तो फिर हम वहाँ क्यों जाएं, हमारा वहाँ पे जाना बनता ही नहीं है। लिहाजा मशावरत से ये फ़ैसला किया गया था कि जहाँ ये बैठे होंगे काफ लीग वाले, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें फार्म 47 वाले, वहाँ हम नहीं जाएंगे और वहाँ पे शिरकत नहीं करेंगे। और दूसरी जानिब उनका कहना था कि हम डट के खड़े हैं अपनी जमात के साथ, और आज से नहीं है, इब्तला व आजमाइश के हर दौर से हम चलते आ रहे हैं और हमने कभी क़यादत को अपनी पुश्त नहीं दिखाई, पीछा नहीं दिखाया। हम क़यादत के साथ हर घड़ी, हर गांव, हर मुश्किल वक्त में खड़े हैं, खड़े रहेंगे, लेकिन ये हमारा एक असूली मौक़िफ़ था। अब नाज़रीन, मेरा अगला सवाल ये था कि क्या ये बेहतर ना होता कि आप बजाय गुरेज करने के आप मौके पर मौजूद होते, और जब डिप्टी कमिश्नर साहिबा अदाद शुमार दे रही थी वज़ीर आला को, तो आप तो शहर के बासी हैं, आप तो शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, आप इन शहर की गलियों में खेल कूद कर जवान हुए, तो आपसे ज़्यादा हक़ाइक़ कौन जानता था। डिप्टी कमिश्नर साहिबा तो अभी जुमा 8 दिन हुए शहर में आई हैं, तो क्या ये बेहतर ना होता आप अपनी कायद के सामने हकीकत रखते, हक़ाइक़ से आगाह करते, और जहाँ जिसकी नाअहली है उस बारे में उनको बता देते। तो नाज़रीन, इस बारे में नवाबज़ादा ताहिरुल मुल्क कोई वाज़े बात ना उन्होंने कही। यहाँ उन्होंने एक तस्करा छेड़ा कि जो अदाद शुमार की आप बात करते हैं, तो गुजरात में इंतज़ामिया और सहाफ़ी बरादरी के बीच एक चलती आ रही है नाखुशगवार सी सूरत हाल। इस वजह से हक़ाइक़ मसख़ हुए हैं और हक़ाइक़ जो हैं वो उजागर नहीं हो पाए। मैंने यहीं से फिर ज़िमनन सवाल छेड़ दिया कि आप एक ज़ीरक सियासतदान हैं, आपका वर्किंग रिलेशनशिप जो है सहाफ़ी बरादरी से बहुत अच्छा है, तो आपने भी कोई कोशिश क्यों नहीं की, आप आगे बढ़ते और जो ज़िले इंतज़ामिया और सहाफ़ियों के बीच एक जंग चल रही है इसको आप ख़त्म करवाते। इस पर उनका कहना था कि गुजरात के सहाफ़ी मेरा मान है और सहाफ़त वैसे भी रियासत का चौथा सतून होती है, तो मैं दिल से ये चाहता हूँ कि इस मामले को अब खुश असलूबी से हल होना चाहिए। यहाँ उन्होंने वाज़े किया कि मैं गुजरात की सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़ा हूँ। अब नाज़रीन, ये सारी बातें, ये सारी गुफ्तगू उनसे हुई और फिर उनका ये कहना था कि हम मशकूर हैं वज़ीर आला पंजाब के कि वो गुजरात के शहरियों की तकलीफ़ का एहसास करते हुए शहर में आईं और यहाँ उन्होंने जायज़ा लिया और फिर एक बड़े पैकेज का वो ऐलान भी करके गईं जिससे गुजरात में तमाम तर मसाइल नकासी आपके वो हल हो जाएंगे। और नाज़रीन, फिर मेरा उनसे ये सवाल भी था कि आप एक फ़िक्रे में गुजरात शहर की मौजूदा तबाही का ज़िम्मेदार किसको करार देते हैं। तो इस पर उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया कि मैं किसी फ़र्द वाहिद को
इसका कसूरवार वो करार नहीं देता। दरअसल जो नवाही इलाके हैं, नशेबी इलाके हैं गुजरात की, जो फसीले शहर की, उनके बाहर वहाँ जो आबी गुज़रगाहें हैं वहाँ तजावज़ात हो चुकी हैं और बहुत से मसाइल ने जन्म लिया है काफ़ी सालों से। तो इस वजह से गुजरात को ये सूरत हाल देखना। नाज़रीन, मेरा राब्ता हुआ मियाँ तारिक महमूद से, उनका भी यही जवाब था कि जहाँ फार्म 47 वाले हैं हमसे हारे हुए, हम वहाँ क्यों जाएं, हम नहीं जाते। नाज़रीन, ये सारा मामला है जो मैंने आपके सामने रख दिया। अब फैसला करना आपका काम है कि क्या नून लीग की क़यादत का इस नाजुक मोड़ पे, जब गुजरात शहर जो है वो 70-80% पानी में डूबा हुआ था और उनकी कायद मोहतरमा गुजरात तशरीफ़ लाईं, तो ये गुरेज करना जो है, ये जवाज़ बना कर कि वहाँ फार्म 47 वाले हैं, नुमायाँ हैं वो, तो हम वहाँ क्यों जाएं। आपके नज़दीक क्या ये फ़ैसला साइब है, दुरुस्त है? और नाज़रीन, क्या इस फ़ैसले से कोई असर पड़ेगा? क़यादत इसको संजीदा लेगी? और क्या इससे काफ लीग के जो फार्म 47 वाले MNA MPs हैं उनकी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई असर आएगा, कोई सुनवाई होगी? तो ये अगर ऐसा है तो फिर तो ये फ़ैसला साहिब है, बर वक्त है, और ये मैं समझता हूँ एक असूली मौक़िफ़ भी है। लेकिन अगर इस फ़ैसले से, इस एहतजाज से कुछ बिगड़ने वाला नहीं काफ लीग की क़यादत का, जो बकौल इनके के फार्म 47 की पैदावार हैं, तो फिर क्या हासिल हुआ नून लीग की क़यादत को? ये सोचना होगा। और ये भी कि क्या अब नून लीग की क़यादत जो है वो एक वफ़द की सूरत वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेगी, उनके सामने गुजरात शहर की सारी सूरत हाल रखेगी, हक़ाइक़ से उनको आगाह करेगी? ये एक सवालिया निशान है। और यहाँ चलते चलते नाज़रीन, आखिर में बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है। मोहतरमा डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने जब ब्रीफिंग दी वज़ीर आला पंजाब को और ज़िक्र किया कि 2005 में जब गुजरात की जो सीवरेज बिछाई गई तो वो एक गैर इंसानी फ़ेल था, यानी सीवरेज सिरे से गायब है, गुजरात में सीवरेज कभी डाली ही नहीं गई। तो नाज़रीन, यहाँ उनके साथ वज़ीर आला के पहलू में चौधरी शुजात हुसैन के फ़र्जंद और मरियम नवाज़ साहिबा की काबीना के सूबाई वज़ीर मौजूद थे, जो उस वक्त 2005 में जब चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत थी, तो नाज़रीन चौधरी शुजात वज़ीर आज़म भी रह चुके परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, तो उस वक्त सालिक शाफ़े भी उस हुकूमत का, उस बंदोबस्त का हिस्सा थे। तो क्या ये सवाल उनसे भी किया जाएगा? और नाज़रीन, बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल ये भी है कि मोहतरमा डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने जब वज़ीर आला पंजाब को बताया कि 2005 से 25 आ गया है, हम गोया गुजरात में बग़ैर सीवरेज के, मोहतरमा मरीम नवाज़ का कहना था कि बग़ैर सीवरेज के ही चले जा रहे हैं, तो कोई काश उनको ये भी बताता कि 10 साल यहाँ आपके अहद हुकूमत में, जब पंजाब और मरकज़ में नून लीग की हुकूमत थी, तो यहाँ आपके बड़े ही करीब समझे जाने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हाजी नासिर महमूद मुतअद्दिद बार MPA रहे, गुजरात के चेयरमैन भी रहे और फिर मेयर गुजरात भी रहे। तो क्या उनसे भी ये सवाल किया जाएगा कि गुजरात शहर आज तक सीवरेज के बगैर ही चलता आ रहा है? ये कैसे हुआ, ये क्यों कर हुआ? नाज़रीन, बहुत से सवाल हैं। ये सारी सियासी सूरत हाल थी वज़ीर आला पंजाब की गुजरात आमद पर, और इस मौका पर नून लीग की मरकज़ी क़यादत ने वहाँ ना जाकर जो क़यादत को एक पैगाम देना चाहा, उससे क्या असर पड़ने वाला है आने वाले दिनों में गुजरात की सियासत पर। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।